Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. In today's session, we'll continue the poem Night of the Scorpion written by Naseem Ezekiel. The poem tells us a story about a night when the mother of the speaker of the poem is stung by a scorpion. People from the neighborhood gather at her place and they first try to find the scorpion, but when they fail to do so, they gather around the mother. Now let's continue from here. May he sit still, they said. So अब स्कॉर्पियन तो मिला नहीं, तो अब वो क्या कहने लग पड़े कि अब वो प्रार्थना करने लग पड़े कि अब स्कॉर्पियन जहाँ पर है वहीं पर टिका रहे, वो अब ज़्यादा इधर उधर ना जाए ताकि जहर भी माँ के शरीर में ना फैले. सो स्टिल का मतलब भी क्या होता है? विदाउट मूविंग. सो मे ही सिट स्टिल, दे सेड. सो दे प्रेड, may the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. So then they made another prayer for the mother and they said that this suffering may burn the sins of the previous birth of the mother. So कि जो उसने कोई पिछले जन्म में पाप किए हैं वो सारे धुल जाएं, वो सारे कट जाएं उसकी आज की जो दुख तकलीफ है उसके साथ. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. And then they also made another prayer that the suffering that she is undergoing should decrease the sorrows of her next birth. कि अगला जन्म भी उसका अब फिर अच्छा जाएगा क्योंकि वो इस जन्म में इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ उठा रही है. May the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, they said. So फिर उन्होंने क्या कहा कि may the sum of evil decrease because of the suffering of this woman and may the sum total of good increase. So this was their belief. क्लियर कि जो औरत जो तड़फ रही है वो अपनी सफरिंग के साथ सिर्फ अपने पाप ही नहीं काट रही, वो पूरी दुनिया के पाप काट रही है और पूरी दुनिया में जो पुण्य है उसका जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है और पाप का बैलेंस जो है वो पाप की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. So then they made another prayer that the poison of the scorpion may purify both the body and the soul of the mother. Yeah? Because of the suffering that she is undergoing, may all desire and all ambition leave her body and soul. कि जो शुद्धि हो जाए उसकी जो शरीर और उसकी आत्मा है उसमें से सारी इच्छाएं और सारी लालसाएं निकल जाएं, किसकी वजह से जो वो इस समय दुख तकलीफ उठा रही है. More land and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. And the mother was there lying on the floor in the center and the villagers sat around and they had peace of understanding on their faces. Now this was something very unusual. The faces of the villagers were totally peaceful. Those villagers were totally at peace. And this is something very unusual because when we witness somebody's suffering, we also become very disturbed. Okay? So, but here the case was different, and that is because the villagers thought that they understood what the woman was going through and why she was going through all this. Okay? So, क्यों इस तरह से वो विलेजर्स पूरी तरह से शांत बैठे थे? बिकॉज वी इंडियंस बिलीव इन द थियोरी ऑफ
कर्मा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं दैट द sorrows that might descend on us in this life are the result of some sins that we committed in our previous lives. We believe in the reincarnation of soul. We believe that only the body dies and the soul is immortal, and the soul takes many births. Clear? And if we do something wrong in one birth, we might get punishment in our next birth or next births. So this was their belief. They knew why the woman was suffering. So that is why they were totally at peace. So more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. So this went on throughout the night. More and more neighbors came in with candles and with lanterns, and insects also came in because it was raining continuously outside, and the rain was endless, and many insects came in due to that. My mother twisted through and through, groaning on a mat, and through this the mother was lying on a mat and she was groaning with pain. वो दर्द से करा रही थी, बहुत तकलीफ में थी, and she could not even lie still. उससे सीधा लेटा भी नहीं जा रहा था, and her body was twisting with pain. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. And the father, who was the husband of the woman who had been bitten by the scorpion. So the father was a skeptic and he was a rationalist. So he considered himself to be different from the rest of the villagers, and he called himself a skeptic. अब skeptic कौन होता है? जो कि आसानी से पुराने विश्वासों में विश्वास नहीं रखता है, जो मान्यता को, पुरानी मान्यताओं को नहीं मानता है, जैसे कि आपके एंड में ये दिया हुआ है मीनिंग. स्केप्टिक, वन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ्स, जो कि मान्यताओं पर जो किंतु करता है, परंतु करता है, सवाल उठाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केप्टिक. सो वो क्या कहता था कि मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता. एंड ही वॉज अ रैशनलिस्ट ऑल्सो. नाउ हु इज अ रैशनलिस्ट? वन हु एक्सेप्ट्स रीजन एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन, बिलीफ और कॉन्डक्ट. सो रैशनलिस्ट हम किसको कहते हैं? जो कि तर्क से चलता है. अगेन, जो कि अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता, जो कि हर बात को तर्क से, तर्क की तकड़ी में तोड़ता है, जो कि इन अदर वर्ड्स जिसको हम कहते हैं ना, अ मैन विद द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड. सो फादर अपने आप को स्केप्टिक और रैशनलिस्ट कहता था. वो क्या कहता था कि हर बात मुझे तर्क से बताओ तो मैं मानूंगा. बट हियर ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग एवरीथिंग टू रिलीव द मदर ऑफ द पेन. सो माँ को उस दर्द से निजात दिलवाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो भी कोई सुजेस्ट कर रहा था. सो ही वॉज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड. सो ही ट्राइड एवरी पाउडर. कोई किसी ने बताया इसका चूरा बनाकर खिला दो, वो उसने किया. किसी ने बताया कि ये इसको मिक्सचर, ये घोल दे दो, तो उसने वो दिया. नाउ हर्ब क्या होता है? जड़ी बूटी. सो इफ समवन सुजेस्टेड अ हर्ब, he administered that herb to the mother. So उसने वो जड़ी बूटी भी खिलाई. एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है? कि काफी चीजों का मिश्रण. सो उसने सब कुछ उसने ट्राई किया कि जो मदर है उसको पीड़ा से राहत मिल जाए. He even poured a little paraffin upon the bitten toes and put a match to it. So in his desperation he even poured a little paraffin. A paraffin क्या होता है? Paraffin is an oil with a strong smell and that is used as a fuel, जिसको कि ईंधन की तरह यूज किया जाता है, मिट्टी का तेल. सो उसने इवन वो भी माँ के पैर पर डाल दिया. कहाँ पर डाला? ऑन द बिटन, अपॉन द बिटन टोज. सो बिटन टोज का मतलब क्या है? टोज क्या होती है? पैरों की उंगलियां. और बिग टो क्या होता है? अंगूठा पैर का. सो जहां पर उंगलियों पर
उस बिच्छू ने काटा था, वहां पर फादर ने इवन मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा दी। तो आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। सो फादर ने क्यों किया था? ताकि वो जो जहर है वो खत्म हो जाए, जल जाए उसकी। सो द चिल्ड्रन वर नेचुरली वेरी स्केयर्ड एंड द स्पीकर वॉज वॉचिंग द फायर ईट अपॉन द फ्लैश ऑफ द मदर। सो कंज्यूमिंग द फ्लैश ऑफ द मदर। सो बच्चा देख रहा था कि किस तरह से आग जो उस माँ का जो पांव था उसके मांस को खत्म कर रही थी। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. So not only that, the father even called a holy man to his place. So father ने even एक holy man को भी, एक साधु को भी बुला लिया और उसने कई तरह की, उसने क्या किया? The holy man performed his rites. So उसने कई विधियां की, कई उसने अनुष्ठान किए कि ताकि जो जहर है वो उसका असर खत्म हो जाए। सो द चाइल्ड वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म दोज राइट्स। वो विधियां कर रहा था। टू टेम द पॉइजन। टेम का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। सो टू ब्रिंग द पॉइजन अंडर कंट्रोल विद एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन क्या होता है? मंत्र। सो जो होली मैन था वो कई तरह की रीतियां कर रहा था, कई तरह के मंत्र बोल रहा था ताकि जो पॉइजन है वो काबू में आ जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। सो 20 घंटे माँ इसी तरह से तड़पती रही और आफ्टर 20 आवर्स द पेन सबसाइडेड। सो मे बी द पेन वोर इटसेल्फ आउट। शायद अपने आप ही वो सही हो गई। जो पीड़ा थी, शायद जो सारी चीजें थी उनका कोई भी असर नहीं हुआ था, बिकॉज इट टुक ऑलमोस्ट 20 आवर्स। सो माँ 20 घंटे तक तड़पती रही, फिर वो जहर का असर अपने आप ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो 3 लाइन्स हैं, दे आर पुट सेपरेटली। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। और इस सारी जो भी हुआ था, इस सारों के बाद जब वो मदर ठीक हो गई तो सिर्फ उसने क्या कहा कि भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने मुझे ही काटा, बिच्छू ने मुझे ही काटा और मेरे बच्चों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे बच्चों को बख्श दिया। सो दिस वॉज वॉट द मदर सेड। सो दिस टेल्स अस अबाउट द सेल्फलेस मदर, सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रन. So now we have come to an end of this poem. So if you have understood this poem and if you have liked this lecture, please give it a like and please subscribe to my channel. Thank you very much.